हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए मिल के सब परमेश्वर की आराधना करें और एक ताली बजाते उसकी महिमा करें। Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose to know. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose to know. Come all the time. Now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Just as you are to worship. Just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now is the time to worship God. Now is the time to give your heart. Come just as you are. Just as you are to worship God. Just as you are before your throne. Every tongue In heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. Oh, it should not fade. Blessing and honor, glory and power be to the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. Oh, it will not fade. My God, what is that? बरकत और इज्जत, महिमा और सामर युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के संकट, सारी जाति के सज्जन, युगों के परमेश्वर समझ के। सारी जुबान एक स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेगी, सब घुटने टेकेंगे सम्मुख तेरे। हर हाथ नाम एक
स्तुति में होगा तू सबसे महान। ओ प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगे, सब घुटने टेकेंगे सम्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान। ओ प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। अटल रहेगा राज, अटल रहेगा राज तेरा पृथ्वी पर, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। तेरी योग्यता की है नहीं कोई मिसाल, कोई मिसाल। तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगे, सब घुटने टेकेंगे सम्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान। ओ प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। Worship you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. तू जगहों का परमेश्वर है बेटा। वचन कहता है हर जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा और कहेगा यीशु मेरा प्रभु है। Hallelujah. Let's worship him. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. You deserve the glory, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Worship you, Father. Hallelujah. Let's exalt him. Jesus, thank you, Lord. Thank you for this day. Thank you for your mercy. Lord, we don't deserve your mercy. We don't deserve your love, Father. But thank you for being merciful, Lord. धन्यवाद पिता, धन्यवाद। Thank you, Lord. Worship you, Father. सिंहासन पर वो विराजमान, worship you, महान है। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ कर गाते सलाम, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सलाम, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। है भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो गई। मंगल और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार की चादर से मुझे ओढ़ ले। मेरी का अंगारा मेरी ओर उठा, मेरे होठ को छू, कर मेरे मेरे पाप क्षमा, मुझे कर कबूल। मेरी का अंगारा मेरी ओर उठा, मेरे होठ को छू, कर मेरे मेरे पाप क्षमा, मुझे कर कबूल। मेरी का अंगारा मेरी ओर उठा, मेरे होठ को छू, कर मेरे मेरे पाप क्षमा, मुझे कर कबूल। पिता, हम अशुद्ध होठ के मनुष्य थे, हमारे मुख से छल की बातें ही निकल रही हैं लॉर्ड। हमें पवित्र कर, उस वेदी का अंगारे से हमको छू पिता, हमें शुद्ध कर, हमारे होठों को शुद्ध कर पिता।
लखील नबाहान से हमें कबूल कर पिता, पवित्र कर पिता। नबाहान सूर्य समान मुख उसका प्रकाश, प्रथम अंतिम और जीविता है उसका राज। आमेन, हालेलुया। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीविता उसका है नाम। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से उसके मुख से निकलती दो धारी तलवार। सूर्य समान उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीविता है उसका राज। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलती दो धारी तलवार। मैं भक्ति के में साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो गई। तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार की चादर से मुझे ओढ़ ले। मेरी का अंगारा मेरी ओर उठा, मेरे होठ को कर मेरे आंगन, मेरे पाप क्षमा मुझे कर वेदी का अंगारा मेरी ओर उठा, मेरे होठ को छू कर मेरे आंगन, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो गई। तन मन धन और घुटना टेक रहा हूँ अपना, तेरे प्यार की चादर से मुझे ओढ़ ले। तेरी का अंगारा मेरी ओर उठा, मेरे होठ को छू कर मेरे आधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। वेदी का अंगारा मेरी ओर उठा, मेरे होठ को छू कर मेरे आधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। हे पिता, हम पापी हैं पिता, हमारे पाप क्षमा कर पिता, हमें कबूल कर पिता। जिस तरह से हम तेरे पास आए हमें कबूल कर दो। अपनी बेटी का अंदाज़ छू ले पिता, छू ले। शिखेगा ये परमेश्वर को जिस महिमा के वो योग्य वो तुम महिमा चढ़ाए। वो हमारे महिमा के योग्य परमेश्वर है। Worship you, Father. Move in our midst, Lord. हमें इस योग्य मना की तो हमारे व्यर्थ में चल फिर सके पिता। नहा नहा नहा, यह स्वर्ग में तेरी उपस्थिति रहती है पिता, हमारे बीच में तेरी उपस्थिति बनी रहने पाए पिता। हमें इस योग्य मना पिता, हम योग्य नहीं है।
अपने लहू से हमें धो, उस वेदी के अंगारे से हमें छू ले पिता, रखाए लाचान दे से। We worship you, Lord. We worship you, Father, happiness. Oh, we worship you, Lord. Amen. सिंहासन पर जो बैठा और उसमें नेको रहने से, सिंहासन पर जो बैठा और उसमें नेको, सिंहासन पर जो बैठा, वो मेमना है जो सिंहासन पर बैठा है, वो मेरे आगे पापों में मारा गया और उसमें नेको, वो आशीष, वो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा, वो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। Blessing and honor, be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा, आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। Be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ उस मेमने की है जो आपके और मेरे पापों के कारण मारा गया। वो निर्दोष मेमना जिसके पाप से कोई जान बचा ना थी, लेकिन वो चरवाहा मेमना बन गया ताकि हमें और आपको अपने पिता से मिल करवा सके। लहा लहा लहा, आज उसको उस लेवल की महिमा दी जिसके वो योग्य है। ओ आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा, हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हम इस योग्य ना थे कि तू हमारे मध्य में आता, हम पापी थे पिता, तुम तब भी हमसे प्रेम करा। तुमने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को हम लोगों के लिए मारा पिता, ताकि हम लोग सब उद्धार पा सके। तू महान, तू धन्य है। नहा 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 नसखी न शुकी नहा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद देते पिता, और हम कह भी कर सकते हैं तेरे लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा अब से लेकर युगान युग तक सिर्फ और सिर्फ तेरा ही है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। एक और बार हम सब मिल कर के उसके सम्मुख हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, और इस समय हम उसके वचन से सुनने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ हम सबके दिल तैयार हैं और हम एक्सपेक्टेशन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए हैं कि आज परमेश्वर एक बार फिर से हमसे बात करे, कुछ हमारे अंदर डिपॉजिट करे, हमको इनकरेज करे, और ख़ास तौर से इन टाइम्स के लिए परमेश्वर हमको हिम्मत
और ताकत दे। और इसी आशा के साथ आज की सुबह मैं परमेश्वर के इस वचन को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज के संदेश का शीर्षक मैंने यूं दिया है, इन सीजन और आउट ऑफ सीजन गॉड इज एबल। चाहे हमारे लिए समय अनुकूल हो, चाहे हमारे लिए समय प्रतिकूल हो, परमेश्वर फिर भी योग्य है। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर सारे समयों का परमेश्वर है? परमेश्वर सारे समयों के ऊपर है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर सारे समयों को कंट्रोल करता है? यस। कई बार मुझे और आपको डिफिकल्ट लगता है, खासतौर से इन दिनों में, जैसे समयों में मैं और आप गुजर रहे हैं, खासतौर से ये वर्ष और ये तमाम जो पैंडमिक आया है, और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहां हमें लगता है थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, चीज़ें हमारे बस के बाहर जा रही हैं, चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। वो परिस्थिति और ओवरवेलमिंग होती जा रही है और भयानक होती जा रही है। लेकिन फिर मुझे और आपको अपने आप को स्मरण दिलाना पड़ता है, नहीं, हमारे पास एक जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आज भी राज्य करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में उसने अपने दास यूहन्ना को ये बात स्मरण दिलाई। उसने कहा, यूहन्ना, जिससे तू बात कर रहा है वो परमेश्वर है, और वो था, और वो हमेशा तक रहेगा। He is, He was and He will always be। और इसी बात में मैं और आप अपनी आशा रखते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे पास एक जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। सो आइए हम संदेश में चलें। संदेश क्या है? इन सीजन और आउट ऑफ सीजन गॉड इज एबल। सारे समयों में परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सामर्थी है ना। इस विषय पर लेकर अगर आप बाइबल में ढूंढने लगें तो आपको अनेकों घटनाएं मिलेंगी, अनेकों टेस्टमनीज मिलेंगी, अनेकों लोगों के अनुभव मिलेंगे जहां वो प्रमाणित करेंगे कि देखो, समय विपरीत था या समय अनुकूल था, हमारा परमेश्वर हमारे साथ था और उसने हमारी सहायता करी। सो बहुत सारी घटनाओं में ना जाते हुए आज मैं 4 मुख्य बातें आपके सामने रखूंगा, 4 उदाहरणों को लेते हुए, और हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि भले ही हम एक डिफिकल्ट समय में हैं, भले ही हम एक विपरीत टाइम में हैं, हम एक अनसर्टेन टाइम में हैं, अनिश्चित समय में, लेकिन फिर भी ऐसे समय में हम क्या करें? ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? सो आज हम इस बात को इन 4 हिस्सों से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं एक पद आप मेरे साथ पढ़े। सबोपदेशक, एक्लीसियास्टिक, सबोपदेशक, उसका 11वां अध्याय और उसका 4था पद। एक्लीसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 4 लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने नहीं पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने नहीं पाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हम सिर्फ उसी टाइम के लिए ठहरेंगे जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो और तब हम काम करें, तो शायद हम कभी काम ना कर पाए। अगर हम ऐसे समय के लिए रुकेंगे, वो सारी चीजें बिल्कुल फेवरेबल हो जाएंगी, तब हम गॉस्पेल सुनाएंगे, तब हम जाकर प्रभु के लिए काम करेंगे, या तब हम अपने इस काम को टेकअप करेंगे। नहीं प्रभु के लोगों, शायद ऐसा समय ना मिले, क्योंकि हर समय में कुछ ना कुछ चुनौतियां और चैलेंजेस होते हैं। सो बाइबल भी हमको इनकरेज कर रही है, बोला डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ये मत कहो कि अरे आज मौसम ऐसा है तो मैं आज काम नहीं करूंगा, और कल मौसम ऐसा है इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। मुझे और आपको हर मौसम में, हर समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना है और कदम बढ़ाना है। आमेन। क्योंकि हमारा परमेश्वर उन समयों में भी हमको अच्छा प्रतिफल देना जानता है। मेरे साथ चलिए पहली उस घटना में जिस पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 18, बहुत मशहूर हिस्सा है, हम सब इस घटना को अच्छे से जानते हैं। अब्राहम एक वृक्ष के नीचे बैठा है और तभी उसने देखा कि 3 पुरुष वहां आए, और अब्राहम पहचान गया कि ये कोई साधारण लोग नहीं है, बल्कि ये स्वयं परमेश्वर है। और तब अब्राहम आगे दौड़ कर गया, उनके
आगे दंडवत किया, उनको अपने घर ले आया। आपको मालूम है ये पूरी घटना, इसलिए मैं आपको पढ़वा नहीं रहा हूं। लेकिन अब ये लोग अब्राहम के घर आ गए और वहां बैठकर ये अब्राहम से बातचीत कर रहे हैं। 9th वर्स देखिए, जेनेसिस 18 वर्स 9। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी कहां है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे ना। ये घटना में और आप जानते हैं, अब्राहम और सारा के पास एक प्रॉमिस था और बहुत दिनों से प्रॉमिस था। परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से कि मैं सारा के द्वारा तुझे एक पुत्र दूंगा और उस पुत्र के द्वारा मैं बहुत सारी तेरे वंश को बढ़ा दूंगा। जैसे आसमान के तारे गिने नहीं जा सकते, वैसे मैं तेरी संतान कर दूंगा और फिर तुम्हारे वंश के द्वारा भूमंडल के सारे वंश आशीष पाएंगे, सारे कुल आशीष पाएंगे। लेकिन अब्राहम इस प्रतिज्ञा के लिए ठहरा रहा और बहुत समय बीत गया। बल्कि अब्राहम क्लोज टू 100 ईयर्स आ गया और सारा क्लोज टू 90 ईयर्स आ गई और ये प्रतिज्ञा अभी तक पूरी ना हो सकी। लेकिन इस प्रतिज्ञा के पूरे होने के ठीक 1 साल पहले परमेश्वर ने फिर अब्राहम को विजिट किया। देखिए, और परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? अगले वर्ष इसी समय में वसंत ऋतु पर मैं फिर आऊंगा और तब मेरी वो प्रतिज्ञा जो मैंने तुझसे कही थी वो पूरी हो जाएगी ना। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। 12 पद देखिए, इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? सारा के अंदर एक संदेह आ रहा है, क्योंकि सारा अपनी परिस्थिति को जानती है। सारा अपनी हालत को जानती है, अपने पति को जानती है, अपनी उम्र को देख रही है और सारा के मन का विचार क्या है? दिस इज नॉट पॉसिबल। शायद सारा सोच रही होगी, प्रभु आप थोड़ा लेट हो गए। अगर यही बात आप 15 साल 10 साल पहले कहते तो पॉसिबल था, बट गॉड यू आर लेट नाउ। परमेश्वर अब नहीं हो सकता, मैं जानती हूं अब नहीं हो सकता। कोई जाने या ना जाने, आई नो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर ने सारा के मन की बात को जान लिया और देखिए 13वें पद में क्या लिखा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मैं जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच मेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं तो नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी ना। मैं और आप इस घटना को जानते हैं और हमें यह भी मालूम है कि परमेश्वर ने अपनी बात को पूरा किया। इसहाक का जन्म हुआ और इसहाक के द्वारा अब्राहम का वंश बढ़ गया और आज तक अब्राहम की संतानें इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और जैसा परमेश्वर ने कहा था अब्राहम के द्वारा दुनिया के सारे कुल आशीष पाएंगे, सचमुच ये बात पूरी हुई, क्योंकि अब्राहम ही के वंश से हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आया और उसने सारी पृथ्वी के लोगों के लिए, उनके पापों के लिए उद्धार के काम को पूरा किया। हालेलुया। सो मैं और आप क्या देख रहे हैं? इन सीजन और आउट ऑफ सीजन गॉड इज एबल, गॉड इज एबल। सारा और अब्राहम को लग रहा था नहीं हो सकता। सारा को लग रहा होगा प्रभु आप लेट हो गए हैं, अब तो सीजन खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर ने सारा की बात के ऊपर उठकर एक और बात कही। उसने कहा नियत समय पर, अपॉइंटेड टाइम। तब सारा और अब्राहम को शायद ये बात समझ में आई हो, ओ परमेश्वर ने एक समय अपॉइंट करके रखा था और अब वो अपॉइंटेड टाइम हमारे लिए आ रहा है। अब देखिए इसी जेनेसिस का चैप्टर 21 वर्स 1,
21 का 1, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यहां फिर से वो वर्ड आया है, नियुक्त समय, अपॉइंटेड टाइम। गॉड्स पीपल, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन की उन्नति के लिए परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम सेट है। मेरे लिए परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम सेट है, उसकी कलीसिया के लिए उसका अपॉइंटेड टाइम सेट है। और हो सकता है हमको चारों ओर देखने से ऐसा लग रहा हो, गॉड टाइम इज स्लिपिंग आउट, समय तो हाथ से निकलता जा रहा है, परिस्थिति तो बिगड़ती जा रही है, अब शायद कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आप बहुत वर्षों से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे और आपको लग रहा है, ओ अब तो मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूं, अब तो मेरी वो एज निकलती जा रही है और अब ये कैसे हो सकेगा। शायद आप भी सारा के समान सोच रहे हो, परमेश्वर लेट हो गया, परमेश्वर भूल गया, परमेश्वर शायद कहीं और व्यस्त हो गया, परमेश्वर शायद किसी और के लिए काम करने में बिजी था, एंड ही फॉरगॉट मी, वो मुझे भूल गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की सुबह आपने आपको इंकरेज करिए, परमेश्वर आपको भूला नहीं है। चाहे आप इन सीजन हो, चाहे आप आउट ऑफ सीजन हो, गॉड इज एबल। हालेलुया। परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए, आपकी प्रोग्रेस करने के लिए योग्य है। जवान बच्चों, आप मत सोचो कि आपका टाइम स्लिप आउट होता जा रहा है। आप अपने करियर के लिए दुआ कर रहे हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहे हैं, माता पिता आप अपने जवान बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं और आपको लग रहा है, ओ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई हैं, आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई हैं। परमेश्वर ने दुआओं को सुना है और परमेश्वर नियुक्त समय पर आकर आपके लिए वो बात जरूर पूरी कर देगा। आमीन। लेकिन एक चीज मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर कौन सी बात को पूरा करेगा? क्या हर वो बात जो हम मांगते हैं? शायद नहीं, लेकिन परमेश्वर हर उस बात को पूरी करेगा जो हम उसकी इच्छा में उससे मांगते हैं। आमीन। हर चीज जो मैं डिजायर करता हूं, जरूरी नहीं है मेरी हर डिजायर परमेश्वर को पसंद हो, जरूरी नहीं है मेरी हर डिजायर परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग हो, लेकिन हां, मेरी जितनी दुआएं, आपकी जितनी दुआएं परमेश्वर की मर्जी में आपने की है, वो दुआएं खाली नहीं जाएंगी और जरूर पूरी हो जाएंगी और उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। सो मैं और आप क्या सीख रहे हैं? वायु को ताकिए, बादल को ताकेंगे तो निराश होंगे, बीज नहीं बो पाएंगे, कटनी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है ये चारों ओर की जो हवा चल रही है ना, जो उथल पुथल मची हुई है ना, वो हर लेवल में हमको लगता है सभी कुछ तो शेक हो रहा है। किस बात पर डिपेंड करें? हर चीज़ जिस पर हम एक समय भरोसा करते थे, निर्भर होते थे, आज वो चीज़ बिल्कुल हिलाई जा रही है। लेकिन फिर भी हम एक बात कहकर अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं। इन सीजन और आउट ऑफ सीजन गॉड इज एबल। सो पहली बात हम क्या सीख रहे हैं? आप इन सीजन हो या आउट ऑफ सीजन हो, कीप बिलीविंग, कीप बिलीविंग। आज हम 4 बातों को देखेंगे कि अगर आप आउट ऑफ सीजन भी महसूस कर रहे हैं, फिर भी मुझे और आपको क्या करना है? पहली बात, कीप बिलीविंग, कीप ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो कहा है उस बात पर भरोसा रखे रहें, रखे रहें, रखे रहें, चाहे चारों ओर की परिस्थिति कितनी भी विपरीत या असंभव सी नजर आती हो। दूसरी बात मैं आपको ले चलूं, यिर्मयाह 32वां अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 32, प्लीज मेरे साथ खोलिए और हम पढ़ेंगे 24 और 25 पद को। यिर्मयाह 32, 24 और 25 पद। यहां यिर्मयाह परमेश्वर से कुछ कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। वो कह रहा है, अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं और ये नगर तलवार और महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वो अब पूरा हुआ है और तू इसे देखता भी है। वर्स 25, तो भी
हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले लो, यद्यपि ये नगर कसदियों के वश में कर दिया गया। वेरी यूनिक सिचुएशन। यिर्मयाह कंफ्यूज्ड है क्योंकि यिर्मयाह को एक तरफ यह दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर ने कहा था कि यह सारा देश, इज़राइल, यहूदा, यरूशलेम, यह सारा देश गुलामी में चला जाएगा। खासतौर से यहूदा और यरूशलेम की बात हम कर रहे हैं, ये गुलामी में चले जाएंगे और ऐसा हो भी रहा है। आपको याद है ना, आपने यिर्मयाह की किताब जरूर पढ़ी होगी। इवन इनफैक्ट पहले अध्याय से ही परमेश्वर ने यिर्मयाह को यही कहना शुरू किया था, उत्तर दिशा से वो राजा आएगा, और वो राजा था नबूकदनेस्सर, और वो आया भी। और जैसा जैसा परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा कहता गया, ऐसा होगा, बिल्कुल वैसा ही होता चला गया। और यहां पर 32 चैप्टर में आके यिर्मयाह क्या कह रहा है, प्रभु इन दमदमों को देख, सी द सीज। प्रभु इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है, इन दमदमों को देख। मतलब आई होप आप समझ रहे हैं, यिर्मयाह कह रहा था ये प्रभु सिर्फ अभी एक्सपेक्टेड ही नहीं है, अभी सिर्फ होने को नहीं है, अभी सिर्फ प्रोफेसी नहीं है, अब तो आ गए वो लोग, अब तो आ गए, दमदमे बांध के सेना चढ़ आई है, हमको घेर लिया है। और परमेश्वर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं भी देख रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं। बट देन वर्स 25 में, तो भी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस देश में एक खेत खरीदूं, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, मैं गवाह बुलाऊं और रजिस्ट्री कराऊं और जमीन खरीदूं, जबकि आपने खुद कहा कि यह देश उजाड़ हो जाएगा और यहां सब खंडहर हो जाएगा और यहां ना मनुष्य बचेंगे, ना दूल्हे का शब्द होगा, ना दुल्हन का शब्द होगा, ना गीत गाने का शब्द होगा, ना बच्चे होंगे, जितने लोग होंगे सब बंधुआई में चले जाएंगे, ये देश वीरान और सुनसान हो जाएगा। प्रभु आपने कहा और मैंने आपकी बात पर विश्वास करके प्रोफेसी किया और वो सब कुछ हो भी रहा है। आपकी प्रोफेसी बिल्कुल सही है प्रभु, बट ऐसी परिस्थिति के बाद व्हाई डू आई बाय लैंड ना? यही तो मेरे और आपके सामने सीखने वाली बात है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, आपको लगता है ये भी परमेश्वर ने कहा और ये भी परमेश्वर ने कहा, और दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती। जैसे यिर्मयाह की सिचुएशन थी, एक तरफ परमेश्वर ने कहा देश उजाड़ हो जाएगा, दूसरी तरफ परमेश्वर कह रहा है फिर भी इसमें जमीन खरीद ले, प्रॉपर्टी खरीद ले, हाँ गवाहों को बुला, दस्तावेज साइन कर और प्रॉपर्टी खरीद ले। यिर्मयाह कंफ्यूज है, बोला प्रभु ये मानूं कि ये मानूं ना? खुदा के लोगों, अगर ये बात परमेश्वर की ओर से है और ये भी परमेश्वर की ओर से है, तो हमें दोनों को मानना जरूरी है। उस सीजन के लिए वो बात, इस सीजन के लिए यह बात, हमें आज्ञाकारी होना होगा। पहली बात हमने अब्राहम सारा के जीवन से सीखी थी, इन सीजन और आउट सीजन कीप बिलीविंग। दूसरी बात हम यिर्मयाह के एग्जांपल से सीख रहे हैं, इन सीजन और आउट ऑफ सीजन कीप डूइंग व्हाट गॉड हैज टोल्ड यू टू डू। समय लगे या आपको विपरीत समय भी लगे, बट कीप डूइंग व्हाट द लॉर्ड हैज आस्क्ड यू टू डू। हालेलुया, वो काम करते रहिए। आपको चाहे कॉमन सेंस में वो अजीब भी लगे, आपको लगे ये बड़ा फनी है, एक तरफ मैं ही प्रोफेसी कर रहा हूं, यिर्मयाह कह रहा है, एक तरफ मैं ही प्रोफेसी कर रहा हूं कि ये देश उजाड़ हो जाएगा, और दूसरी तरफ मैं ही इस देश में जमीन खरीद रहा हूं। कैसी अजीब सी परिस्थिति है। बट यिर्मयाह ने वो बात करी, जब परमेश्वर ने प्रोफेसी देने को कहा उसने प्रोफेसी भी करी, जब परमेश्वर ने कहा जमीन खरीद उसने जमीन भी खरीदी। और मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ के देखेंगे यिर्मयाह 32 को। यिर्मयाह ने खरीदी जमीन, यिर्मयाह ने बुलाया, गवाहों को बुलाया, पैसा पे किया, जमीन खरीदी, दस्तावेज साइन किया, और फिर यिर्मयाह को परमेश्वर का वर्ड समझ में आया। फिर यिर्मयाह को एक और प्रोफेसी मिली और यिर्मयाह ने अपने वो पेपर्स अपने एक सेवक को देकर कहा, जाकर इसे एक अर्दन वेसल में रख दे, एक मिट्टी के पात्र में रख दे, ताकि ये बहुत वर्षों तक सुरक्षित रहे और ये दस्तावेज खराब ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, एक दिन फिर इस देश में बहाली आ जाएगी, एक दिन फिर इस देश में जमीनें खरीदी और बेची जाएंगी, और एक दिन फिर यहां पर हर्ष और आनंद लौट आएगा। सो गॉड्स पीपल,
आउट ऑफ सीजन लग रहा था यिर्मयाह को, आउट ऑफ सीजन, बिल्कुल अजीब लग रहा था देश उस जमीन खरीदना, बट स्टिल ही डिड इट। और मुझे और आपको भी आज क्या सीखना है, इन सीजन हो या आउट ऑफ सीजन हो, परमेश्वर ने अगर कुछ करने को कहा है, कीप डूइंग इट, कीप ओबेइंग द लॉर्ड, क्योंकि उसी में परमेश्वर निरंतर हमको ब्लेस करता जाएगा, हमारी टेरिटरीज को बढ़ाता जाएगा, हमको नई प्रोफेसीज और प्रॉमिसेस देता जाएगा। जो बात हम समझ नहीं रहे हैं वो कुछ समय के बाद परमेश्वर समझा देगा। अगर मैंने तुमसे ये करने को कहा था तो वो इस कारण से कहा था, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम अबाउट टू डू। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर अपनी समझ देगा, अपनी विजडम देगा। तो दो बातें हमने देख ली, आइए तीसरी बात देखें इसहाक के जीवन से। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 26। आज शॉर्ट संदेश है, हम 4 बातों में देख रहे हैं कि अगर हम आउट ऑफ सीजन भी फील कर रहे हैं फिर भी हमें क्या करना है, बट मैं आशा करता हूं इस संदेश से आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय वर्स 1, जेनेसिस 26 वर्स 1, उस देश में अकाल पड़ा और ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। इसका मतलब इसहाक मिस्र में जाने की सोच रहा होगा, तभी तो परमेश्वर ने इसहाक से कहा मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझको आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। ना इमेजिन, उस देश में अकाल है, इसहाक के दिनों में उस देश में अकाल है, लेकिन परमेश्वर इसहाक से क्या कह रहा है, डोंट गो एनीवेयर, कहीं और मत जा इसहाक, यहीं रह, स्टे हियर इटसेल्फ। भले ही अकाल है बट यू स्टे हियर, मैंने तुझे यहां प्लांट किया है, मैंने तुझे ये देश देने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए तू इस देश को छोड़कर मत जा। भले ही यहां अकाल है, तू यहीं रहे और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और ये सारा देश मैं एक दिन तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। और इसहाक ने वैसा ही किया। अगर आप देखेंगे इसके 12वें पद में आइए, फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। ना इमेजिन, अकाल में कोई खेती नहीं करता, क्योंकि अकाल में वो जो भी बोएगा वो वेस्ट हो जाएगा, है ना, वो फल नहीं लाएगा और जो उसके पास खाने के लिए अनाज है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। सो अकाल में जल्दी जल्दी कोई बोने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इसहाक ने कितना बड़ा स्टेप ऑफ फेथ लिया। परमेश्वर ने उससे कहा यहीं रहे, मैं तुझे यहीं आशीष दूंगा, भले ही अकाल है कहीं मत जाना, स्टे हियर। इसहाक ने पहली बात ओबे किया, उसने परमेश्वर से आर्ग्यू नहीं किया, उसने ये नहीं कहा प्रभु पहले अकाल को दूर करो तब मैं यहां आऊंगा वरना मैं जा रहा हूं। नो नो नो, ही स्टेड देयर और उसने वहां रहकर एक और बड़ा काम किया, उसने अकाल की परिस्थिति में अपने बीज को बोया। दैट्स व्हाट वी आर रीडिंग, वर्स 12। और फिर आगे देखिए क्या लिखा है, और उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। वाव, उसी वर्ष में, डिले भी नहीं हुआ, टाइम भी नहीं लगा, उसी वर्ष में। और लोगों के पास कोई फसल नहीं थी, लेकिन इसहाक के पास 100 गुना फसल थी। 100-fold हार्वेस्ट, 100-fold ब्लेसिंग परमेश्वर ने इसहाक को दी। और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया और उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास और दासियां हो गए। वाव, परमेश्वर ऐसे काम करता है अपने लोगों के लिए जब वो उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब वो उस पर भरोसा रखते हैं। नाउ डिफिकल्ट होगा इसहाक के लिए। अगर कोई इसहाक से पूछे, इसहाक क्या तुम्हारे लिए आसान था, और वो शायद मुझसे और आपसे कहे नहीं आसान तो नहीं था, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन मेरे पास परमेश्वर का प्रॉमिस था, मेरे पास एक दृढ़ निश्चय था कि परमेश्वर इन समयों का भी परमेश्वर है, परमेश्वर अकाल का भी परमेश्वर है, परमेश्वर अकाल की परिस्थिति के ऊपर है और वो अकाल की परिस्थिति में भी आशीष देना जानता है।
आमेन। क्या आप विश्वास से कहेंगे, मेरा परमेश्वर अकाल में भी मुझे आशीष देना जानता है। हालेलुया। सो इसहाक को मालूम था परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर का प्रॉमिस उसके साथ है, और उसको मालूम था कि परमेश्वर ने अगर कहा है तो परमेश्वर उसको ब्लेस करना जानता है। सो तीसरी बात हम क्या सीख रहे हैं इसहाक के जीवन से, इन सीजन और आउट ऑफ सीजन कीप सोइंग योर सीड, कीप सोइंग योर सीड। आप चाहे विपरीत समय में भी क्यों ना हो, आप अपने बीज को बोते रहें। और मैं आशा करता हूं प्रभु के लोग समझ रहे हैं, बीज बोना सिर्फ खेती बाड़ी से ही संबंधित नहीं है। हमारे मसीह जीवन में हम अनेकों प्रकार से बीज बोते हैं। हम लोगों को ब्लेस करके बीज बोते हैं, हम परमेश्वर का हिस्सा उसके घर में लाकर बीज बोते हैं। अनेकों तरीके से हम लोगों के मददगार बन के बीज बोते हैं, हम भलाई करके बीज बोते हैं, हम दूसरों का बोझ उठाकर बीज बोते हैं। और बाइबल में लिखा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मैं आशा करता हूं प्रभु के लोग इन कठिन दिनों में आप बीज बो रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप अपने बीज को सिर्फ विथहोल्ड नहीं कर रहे हैं। ओ डर का समय है, ओ कोरोना का समय है, ओ क्या होगा अगर कल हमारे पास कमी हो जाए, सो हम सब कुछ स्टोर कर लें। ओ नो, बाइबल में लिखा है एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत बटोरा लेकिन फिर भी उसके पास कमी रही, लेकिन एक ऐसा है जिसने बिखरा दिया लेकिन उसके पास कभी कमी नहीं हुई। सो इसहाक के जीवन से हम सीख रहे हैं, इन सीजन और आउट ऑफ सीजन कीप सोइंग योर सीड। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था एक्लीसियास्टिस में, अगर कोई वायु को ताकता रहेगा तो बीज नहीं बोएगा, अगर वो बादल को देखता रहेगा, सिर्फ परिस्थिति को देखता रहेगा, ओ कोरोना में ऐसा हो रहा, 2020 में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बीज नहीं बोएगा। वो डर के मारे अपने बीज को रोक लेगा, लेकिन ऐसा करके वो अपनी बढ़ती को भी रोक लेगा, अपनी ब्लेसिंग्स को भी रोक लेगा। परमेश्वर पर भरोसा रख के आप बीज को बोते रहें। सो अभी तक हमने 3 बातें देखा है, आइए अब हम चौथी बात में चलें। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसके 2 पद को देखें। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2। और यहां पॉल है जो तिमोथी को सलाह दे रहा है और कह रहा है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। तू समय और असमय तैयार रहे। यही तो हम सीख रहे हैं, सीजन में या आउट ऑफ सीजन, समय असमय तैयार रहे। और किस बात के लिए पॉल इनकरेज कर रहा है तिमोथी को? समय या असमय तू गवाही देते रहना, समय या असमय तू सुसमाचार सुनाता रहना, जो सेवा तुझे सौंपी गई है उसको पूरा करते रहना। और अगर आप आगे मेरे साथ पढ़ें तो पॉल ने डिस्क्राइब भी किया है कि इस संदर्भ में असमय कैसा होगा। थोड़ा मेरी बात को समझें। इस संदर्भ में, सुसमाचार के संदर्भ में, जो डिफिकल्ट टाइम है या जो विपरीत समय है वो किस प्रकार का होगा, कैसा वो समय होगा। आइए हम पढ़ें इसके 3 और 4 पद को। पॉल कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पॉल कह रहा है जिस विपरीत समय की मैं बात कर रहा हूं ना, वो समय ऐसा होगा जिसमें लोग खरा उपदेश नहीं सह पाएंगे और इसलिए वो अपने को प्लीज करने के लिए जैसा वो सुनना चाहते हैं वैसे ही उपदेशकों को ढूंढ लेंगे। ओह ना, पॉल कह रहा है ये बहुत विपरीत समय होगा, खासतौर से सुसमाचार प्रचार के लिए। ये होगा वो असमय सुसमाचार की सेवा के लिए। और अगर मैं और आप कहें, देखें अपने चारों ओर, तो शायद मैं और आप ऐसे समय में एंटर कर चुके हैं। आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारी गलत शिक्षाएं फैलती चली जा रही हैं और लोग भी उन गलत शिक्षाओं के पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको उन गलत शिक्षाओं में अच्छा लग रहा है, उनको प्लीजिंग लग रहा है, उनको इजी लग रहा है, या
उनको इजी लग रहा, वो गलत शिक्षाओं के पीछे इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल लाइफ उसमें जीने को मिल रही है। और फिर क्या कहता है, कहता वो अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगा लेंगे। ट्रूथ से लोग फिर जाएंगे, मुकर जाएंगे। लेकिन पौल ने तिमोथी को क्या कहा, बोला चाहे समय अनुकूल हो और चाहे समय प्रतिकूल हो, तू समय असमय तैयार रहे, सेवा करता रहे। वर्स 5 देखिए, और फिर कहता है पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। चौथी बात में, और आप देख रहे हैं, इन सीजन और आउट ऑफ सीजन कीप प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज, द गॉस्पल। सुसमाचार सुनाते रहे, सुसमाचार सुनाते रहें। पहले शायद समय ऐसा था जब हम बहुत दिलेरी से और बहुत खुले में सुसमाचार प्रचार कर सकते थे। आज समय बदल रहा है और आज हम उस प्रकार से सुसमाचार नहीं सुना सकते, बट स्टिल मुझे और आपको जिम्मेदारी दी गई है, मुझे और आपको मैंडेट दिया गया है। हम ये नहीं कह सकते ओ काश वो समय लौट आए, क्योंकि शायद वो समय कभी ना लौटे, है ना। हम ये नहीं कह सकते ओ वो समय होता तो मैं गवाही देता, लेकिन अब क्या करूं, अब समय ऐसा है। नहीं प्रभु के लोगों, समय चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर राज्य करता है, वो सब समयों के ऊपर है। अगर वो अकाल में 100 गुना फल दे सकता है, अगर वो अब्राहम और सारा को बुढ़ापे में संतान दे सकता है, तो सोचिए क्या वो डिफिकल्ट टाइम में लोगों का उद्धार नहीं कर सकता? वो जरूर कर सकता है। आमेन। वो डिफिकल्ट टाइम में अपने पुत्र के बलिदान को व्यर्थ होने नहीं देगा। जस्ट बिकॉज टाइम बदल गया है, इसलिए यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ्य नहीं घट गई है। यीशु मसीह के क्रूस का संदेश आज भी कीमती है। यीशु मसीह के क्रूस का संदेश आज भी उतना ही पावरफुल है। लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सो कीप प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल। आज हमने 4 बातें देखी, और जिन समयों में मैं और आप हैं, ये आउट ऑफ सीजन ही लग रहा है, बिल्कुल टाइम विपरीत लग रहा है, लेकिन इन समयों में भी हमें क्या करना है? वी हैव टू कीप बिलीविंग, हमें विश्वास करते रहना है। दूसरी बात हमने देखा, वी हैव टू कीप डूइंग, जो प्रभु ने हमसे करने को कहा हम उसको करते रहें, चाहे टाइम कैसा भी क्यों ना हो गया हो। तीसरी बात हमने क्या देखा? वी हैव टू कीप सोइंग द सीड। और चौथी बात हम क्या देख रहे हैं? वी हैव टू कीप प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल, हमें सुसमाचार सुनाते रहना है, गवाही देते रहना है। मैं आखिरी बात कह रहा हूं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब उसके पास खुला समय था, जब वो सुसमाचार सुना सकता था, अलग अलग जगह जाकर ट्रैवल करके गांव गांव शहर शहर वो सुसमाचार सुनाया करता था। यू सी हिम लेबरिंग फॉर द गॉस्पेल। हम अपने प्रभु को के जीवन को जब पढ़ते हैं, हमें दिखाई देता वो कितनी मेहनत करता था सुसमाचार फैलाने में और लोगों की मदद करने में। लेकिन फिर हमारे प्रभु के जीवन में एक ऐसा टाइम आया जब उसको पकड़ लिया गया, उसको बंदी बना लिया गया, उसको बांध दिया गया, उसको बेड़ियों से जकड़ दिया गया। उसका न्याय करने के लिए वो उसको जगह जगह ले जा रहे थे। लेकिन ऐसे टाइम में भी हमारा प्रभु लोगों पर दया कर ही रहा था। ऐसे टाइम में भी हमारा प्रभु लोगों की सहायता कर रहा था। खास तौर से वो लोगों को गॉस्पेल सुना रहा था। आपको याद है वो व्यक्ति मलखुस जो यीशु मसीह को पकड़ने आया था, और पतरस ने तलवार चलाई और मलखुस का कान कट गया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने उसके कान को हील कर दिया। ना मुझे और आपको पता नहीं उसके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव हुआ होगा, बट फॉर श्योर मे भी उसने विश्वास किया हो, बट इवन अगर नहीं भी किया, फॉर श्योर उसके सामने ये गवाही सच्ची निकली कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है। यीशु मसीह दया के कामों को करता है, जैसा उसने कहा भी था, सिखाया भी था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु मसीह ने एग्जैक्टली वैसा ही करके दिखाया। फिर आपको याद है वो व्यक्ति चोर जो यीशु मसीह के एक ओर लटकाया गया था। यीशु मसीह इतने भयानक पेन में है, वो इतनी एगनी में है, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह अपनी सारी स्ट्रेंथ को बटोर के कोशिश कर रहा है कि वो उन दोनों को बचा सके। दोनों तो नहीं बचे, लेकिन उन दो में से एक बच गया जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया
और उसने कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए मुझे स्मरण कीजिएगा। मेरे और आपके लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हमारे पास टाइम अच्छा है हम तब भी सुसमाचार सुनाएं, तब भी लोगों को गवाही दें, तब भी लोगों के लिए मदद करें। लेकिन अगर टाइम्स वैसे ना भी रहें, टाइम्स अगर डिफ़िकल्ट भी हो जाएं, फिर भी जो मैंडेट मुझे और आपको दिया गया है उसमें हम सुसमाचार सुनाते ही रहें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप खुद भी इस संदेश की लिस्ट में ऐड करते जाएं। लेकिन मुझे बेहतर लगा आज ये 4 बातें आपके साथ बांटने के लिए कि भले ही विपरीत समय है, लेकिन मैं और आप प्रभु से ताकत मांगे। लॉर्ड, आई स्टिल वॉन्ट टू कीप बिलीविंग। मैं अभी भी विश्वास रखना चाहता हूं कि अगर आपने कुछ कहा है तो आप उसे ज़रूर पूरा करेंगे। दूसरी बात, प्रभु हम आपसे ताकत मांगते हैं कि जो कुछ आपने हमें काम सौंपे हैं हम उन्हें अंत तक करते रहें। प्रभु हम बीज बोते रहें, और ख़ास तौर से प्रभु हम इन टाइम्स में भी गॉस्पल सुनाते रहें। जो भी अवसर हमें मिले, चाहे पर्सनली, चाहे अपने परिवार के लोगों के साथ ही मिल करके, बट हम सुसमाचार सुनाते रहें ताकि शायद कुछ और लोग बच जाएं, शायद कुछ और लोग नरक जाने से बच जाएं, कुछ और लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिए जाएं। आइए अब हम प्रार्थना करें और आज परमेश्वर से अपने लिए ये अनुग्रह मांगे, प्रभु से ये ताकत मांगे। उससे कहे, लॉर्ड हेल्प मी लॉर्ड। टाइम्स कैसे भी हैं, टाइम्स कितने भी अनसर्टन क्यों ना हो, लेकिन प्रभु मैं आप पर ये दृढ़ भरोसा रखे रहूं कि आप इन टाइम्स से ऊपर हैं परमेश्वर, और आप इन टाइम्स को कंट्रोल करते हैं, और इन टाइम्स में भी आप काम कर रहे हैं। यस, आप इन टाइम्स में भी अपनी महिमा प्रकट कर रहे हैं, आप लोगों को बचा रहे हैं, आप लोगों को हील कर रहे हैं प्रभु। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है प्रभु जी कि हम लोगों के लिए दुआ करते रहें, हम बैरियों के लिए भी दुआ करते रहें, हम सताने वालों के लिए भी दुआ करते रहें। क्या मालूम उनमें से बहुतेरे प्रभु जी उस अनुभव में आ जाएं जैसे दमिश्क के रास्ते पर आपने पौलुस के जीवन को बदल दिया। लॉर्ड आज हमारी दुआ है प्रभु जी, हम सबको, हमारी पूरी कलीसिया को, और जितने भी विश्वासी लोग हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हैं, आप ये अनुग्रह दें प्रभु जी कि भले ही टाइम्स विपरीत दिखाई दे रहे हैं, बट हम बीज बोते रहें, हम विश्वास रखे रहें, हम आज्ञा मानते रहें, और हम सुसमाचार सुनाते रहें। समय या समय हम तैयार रहें, हम दुख उठाकर भी अपनी सेवा को पूरी कर पाएं प्रभु। हेल्प अस लॉर्ड, हेल्प मी लॉर्ड। हम सब की आप मदद करें परमेश्वर, और हम आपके कार्य को पूरा करके फिर प्रभु आपके सम्मुख, आपके राज्य में आदर के साथ प्रवेश करने पाए। मेरी इस समय खास दुआ है प्रभु जी, अगर कोई जो हमारे साथ इस आराधना में जुड़ा है किसी निराशा के कारण, किसी भय के कारण, किसी लॉस के कारण प्रभु जी उसके विश्वास में कमी हो रही है, या उसका विश्वास टूट सा रहा है प्रभु जी, या अब वो ऐसे विचारों में आ रहे हैं कि ओ क्या फायदा प्रार्थना करने से। लॉर्ड आज आप ऐसे सब प्रियों के विश्वास को पुनः रिस्टोर कर दें प्रभु जी, स्थापित कर दें, मसीह यीशु में एक बार फिर से दृढ़ कर दें प्रभु जी। हमारी दुआ है किसी तरीके से वो अविश्वास के बादल आपके लोगों को घेरने ना पाए प्रभु जी, किसी तरीके से डार्कनेस के बादल आपके लोगों को घेरने ना पाए, आपके लोगों की आत्माएं टूट ना जाएं प्रभु जी, बल्कि आप में और बलवंत 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 और बलवंत होते चले जाएं। हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह, आप दया करें, आप दया करें, ओ आप दया करें, आप दया करें प्रभु जी, आप दया करें। साथ ही हमारी दुआ है इस समय उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या किसी ज़रूरत में हैं, और आपके सम्मुख प्रभु वो इस समय दुहाई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ओ प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ाएं और लोगों को चंगा करें, उनको राहत दें परमेश्वर, उनके जीवनों में वो अद्भुत अनोखे काम करें प्रभु जो कोई और नहीं कर सकता प्रभु। आपके सामर्थी नाम में आपके लोगों के लिए वो मिरेकल्स होने पाए, ऐसी हम दुआ करते हैं परमेश्वर। आप लोगों को चंगा करें, साथ ही आप अपने लोगों को प्रभु वो चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनाएं दूसरों के लिए जब वो दुआएं करें दूसरों के जीवनों में अद्भुत मिरेकल्स होने पाए। बहुत से लोग
उद्धार की आशीष पाएं, बहुत से लोग नया जीवन पाएं, बहुत से लोग आपके अनंत राज्य में शामिल होने पाएं, बहुत से लोगों के लिए मिरेकल्स हो प्रभु जी। इस अकाल की परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में भी प्रभु आपके लोगों को 100 गुना आशीष आप देने जा रहे हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं और ऐसी हम दुआ करते हैं। आप अपने लोगों को बहुतायत से ब्लेस करें लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू। चर्च मिलकर उसको 2 मिनट धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज आपके वचन को हमने सुन लिया, समझ लिया है प्रभु जी। आज हमने प्रार्थना की है प्रभु जी, और अब हम धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु आपने हमको वो 100 गुना आशीष देना आरंभ कर दिया। हम धन्यवाद दे रहे हैं, आपने हमारे विश्वास को एक बार फिर से दृढ़ और बलवंत कर दिया है। हम धन्यवाद दे रहे प्रभु, आपने हमें गवाही देने के लिए चुना है, नियुक्त किया है, और वो सामर्थ भी आज आपने हमको प्रदान की है। लॉर्ड हम आपको धन्यवाद 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 और धन्यवाद ही देते हैं। सारी महिमा आपको मिले, सारा धन्यवाद आदर स्तुति सिर्फ आपको मिले। आपकी उपस्थिति से आपके लोगों के जीवन भर जाएं, उनके घर भर जाएं प्रभु। आपकी रोशनी में आपके लोग चलें और ये अंधकार के बादल किसी तरीके से आपके लोगों को घेर ना सके। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद हमारे जीवनों में काम करने के लिए, धन्यवाद हमारे घरों में उपस्थित होने के लिए। हम सारी महिमा आपको देते हैं। यू डिजर्व ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, कोई और इसके योग्य नहीं है। प्लीज रिसीव ऑल दिस ग्लोरी लॉर्ड। ये सारी महिमा आप कबूल करें। धन्यवाद हमारी दुआ सुनने के लिए, यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से हर एक के साथ जब तक मसीह दोबारा नहीं आता होती रहे, आमीन।